Inclusion is not about lowering the bar, rather, it's about removing the barriers altogether. A very warm welcome to you all to this special episode brought to you by My Action for the Disabled MAD Foundation in collaboration with Bhumika Trust. At MAD Foundation, we have one core belief: equal opportunities and inclusive future. On the other hand, Bhumika Trust is a pioneering organization in the field of disability rights, selflessly contributing to the society and striving towards the goal of tangible change and equitable opportunities for all. Today's conversation is at the very heart of equality and inclusion. It's about the 3 year mandatory practice ruling reinstated by the Supreme Court of India. And to set the legal context, we have a very special guest. He's a distinguished advocate practicing before the Supreme Court of India and various other high courts in quite significant matters. A member of the Accessibility Committee at the Delhi High Court and is also holding an esteemed position as the president of the Bhumika Trust. He has completed his LLB from Campus Law Center, Faculty of Law, University of Delhi, and his bachelor's in English literature from Ramlal Anand College, University of Delhi. He has also served as a Javed Abedi Fellow at NCP EDP. And if you haven't recognized this person yet, let me just introduce him to you. It's none other than Advocate Jayant Singh Raghav. A very warm welcome to you, Jayant. Thank you so much for being here today for this conversation. Hi, Sarah. Thank you so much for welcoming me on board there. So let's just begin with the very basics. What exactly can you tell us about this 3 year mandatory practice ruling that has been reinstated by the Supreme Court of India? See, as far as this mandatory 3 years mandatory practice rule is concerned, तो एक जजमेंट आया था ऑल इंडिया एसोसिएशन ऑफ जजेस वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का एक केस है ऑन 20 मई 2025, जहां पे ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के ट्रिपल बेंच ने ये जजमेंट पास किया था कि जो भी लॉ स्टूडेंट्स हैं या जो लॉ ग्रेजुएट्स होंगे उनको 3 साल की मैंडेटरी प्रैक्टिस करनी होगी with the bar to have competency to become a civil judge union division across multiple states in India. तो इसके इफेक्ट से क्या हुआ कि लॉट ऑफ जो हमारे लॉ स्टूडेंट्स हैं या जो लॉ ग्रेजुएट्स हैं या जो रिसेंटली एनरोल्ड एडवोकेट्स थे उनके ऊपर एक बार लग गया 3 साल का कि 3 साल तक वो कोई भी जूनियर डिवीजन सिविल जज का एग्जाम नहीं दे सकते जो इस जजमेंट से पहले वो दे सकते थे। तो ये एक बहुत डिसअपॉइंटिंग एंड डिसहार्टनिंग था सारे लॉ स्टूडेंट्स के लिए, लॉ ग्रेजुएट्स के लिए और रिसेंटली एनरोल्ड एडवोकेट्स के लिए। सो दैट्स द बैकग्राउंड। Right. And we have heard about this PIL that you have filed regarding this case. What can you tell us about that? सो भूमिका ट्रस्ट ने एक इनिशिएटिव लिया था और इस इनिशिएटिव के अंडर हमने एक पिटिशन फाइल किया ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के अंदर, जहां पे हमने जो 3 इयर्स का या 3 सालों का जो मैंडेटरी प्रैक्टिस रूल है इसको स्ट्रक डाउन करने के लिए हमने एक पिटिशन डाला कि जितने भी विकलांग जन है या उन लोगों को, चाहे फिर वो लॉ स्टूडेंट्स हो या वो जितने भी लॉ ग्रेजुएट्स हों या रिसेंटली एडवोकेट्स हों जो एनरोल्ड हुए हैं रिसेंटली, जो कि विकलांग हैं, उनको इस रूल से छूट दी जाए। ये हमारा पिटिशन था और इसको हमने फाइल किया था ये सोचते हुए कि जो विकलांग जन है उनके लिए 3 साल तक, या जो विकलांग अधिवक्ता हैं जिसे हम कहते हैं हिंदी में, तो उनको इस रूल से एग्जेम्प्ट किया जाए। और हमने ये पिटिशन फाइल किया पब्लिक इंटरेस्ट में, क्योंकि ये सभी के इंटरेस्ट में है एट लार्ज, नॉट फॉर वन। तो
ये हमारी पिटिशन थी सुप्रीम कोर्ट के अंदर। And what about the grounds that you mentioned in this PIL? देखिए, जहां तक ग्राउंड्स की बात है इस पिटिशन के अंदर, पहला हमारा ग्राउंड था कि जो एक जजमेंट था 3 मार्च 2025 का, सुमोटो विजुअली इम्पेयर्ड वर्सेस स्टेट ऑफ एमपी, जिसके अंदर हम ये देखते हैं कि जो 3 साल का मैंडेटरी प्रैक्टिस रूल ऑल इंडिया एसोसिएशन ऑफ जजेस वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के जो जजमेंट आया 20 मई 2025 को, ऐसा ही एक सेम रूल मध्य प्रदेश में पहले से था फॉर द लोअर जुडिशरी, और ये सभी कैटेगरीज के लिए था अक्रॉस द बोर्ड। तो जब ये मामला सुप्रीम कोर्ट के पास पहुंचा तो इस जजमेंट के अंतर्गत सुप्रीम कोर्ट ने ये 3 साल का प्रैक्टिस स्टेट ऑफ एमपी में हटाया इसको, कि भाई विकलांगजन जो है, जो विकलांग अधिवक्ता हैं, वो 3 साल तक कैसे प्रैक्टिस करेंगे, जबकि हमारा जो जुडिशियल इंफ्रास्ट्रक्चर है वो विकलांग अधिवक्ताओं के लिए, या जो विकलांग लॉ ग्रेजुएट्स हैं या लॉ स्टूडेंट्स हैं, उनके लिए सुगम्य नहीं है। और जो हमारे संविधान का जो आर्टिकल 14 है, जो बात करता है इक्वलिटी डॉक्ट्रिन को, उसको भी ये रूल वायलेट करता है। और इसके अलावा जो जजमेंट 20 मई 2025 को आया ऑल इंडिया एसोसिएशन ऑफ जजेस वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में, उसमें हमने ये भी देखा कि जो जजमेंट की हम बात कर रहे थे अभी, जो कि एमपी के जो रूल था उसमें था, तो उस जजमेंट को भी जो ट्रिपल बेंच थी सुप्रीम कोर्ट की जिसने ये जजमेंट पास किया, 3 इयर्स मैंडेटरी प्रैक्टिस रूल, उसने ये कंसिडर ही नहीं किया। एंड एडिशन टू एवरीथिंग, हमको ये समझना भी जरूरी है कि जो विकलांग अधिवक्ता बन जाते हैं, जो विकलांगजन अधिवक्ता बन जाते हैं, उनको कोई भी सीनियर हो जिसके पास कोई अच्छा प्रैक्टिस का एक्सपीरियंस है, वो किसी भी विकलांग अधिवक्ता को एज अ जूनियर नहीं रखता, क्योंकि वो उनको एज अ बर्डन समझता है, नॉट एज एन एसेट। तो ये हमको समझना होगा, ये भी एक हमारा ग्राउंड था कि जब कोई सीनियर एडवोकेट जिसके पास एक अच्छा खासा एक प्रैक्टिस का एक एक्सपीरियंस है, जब वो एक जूनियर को रखेगा ही नहीं, एक विकलांग अधिवक्ता को अपना जूनियर नहीं रखेगा, तो वो विकलांग अधिवक्ता 3 साल तक प्रैक्टिस कैसे करेगा, पहली बात। और प्रैक्टिस भी कैसे करेगा अगर वो इंडिविजुअल भी प्रैक्टिस करना चाहे, तो जो हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर है, जुडिशियल इंफ्रास्ट्रक्चर है या डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर जो है हमारा जुडिशरी का, वही इनएक्सेसिबल है। तो ये बातें ग्राउंड्स के अंतर्गत हमने रखी। और इसके अलावा हमने ये भी देखा कि जब हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर, चाहे वो डिजिटल हो या इंफ्रास्ट्रक्चर वाइज हो, या जो हमारी एक ग्राउंड था कि सीनियर्स नहीं हायर कर रहे हैं विकलांग अधिवक्ताओं को, तो उसमें हम ये भी देख रहे हैं कि जब विकलांग अधिवक्ताओं को एज अ जूनियर नहीं हायर किया जा रहा, वो एज एन इंडिविजुअल नहीं प्रैक्टिस कर सकते इंफ्रास्ट्रक्चर और डिजिटल इनएक्सेसिबिलिटी की वजह से, तो कोई क्लाइंट जो है वो अपना केस एक विकलांग अधिवक्ता को क्यों देगा। तो ये भी एक बहुत बड़ा सवाल था, और ये एक बहुत बड़ा ग्राउंड है हमारे लिए, जो कि हमने अपनी पिटिशन में भी डाला है। तो ये कुछ ग्राउंड्स हैं जो मैंने भी आपको बताए। इसके अलावा भी ग्राउंड्स हैं, बट समय की कमी के अभाव से हम अभी सारे ग्राउंड्स को यहाँ डिस्कस नहीं कर सकते। सो ओवर टू यू सर। And what about the exemptions that you've sought? Prayers क्या थी इस PIL की that you filed? कि देखिए, एग्जिबिशंस अगर हम थोड़ा सा अपने पिछले बातचीत की अगर बात करें, जैसे मैंने आपको बताया शुरुआत में कि जब हमने पिटिशन डाली वो विकलांगजनों को इस 3 इयर्स के मैंडेटरी प्रैक्टिस रूल से एग्जेम्प्ट करने के लिए डाली, कि भाई जो विकलांग अधिवक्ता जो बन जाते हैं, उन लोगों को कम से कम, जो मैंने आपको ऊपर ग्राउंड्स बताए, उन ग्राउंड्स के ऊपर इन विकलांगजनों को, विकलांग अधिवक्ताओं को इस रूल से एग्जेम्प्ट किया जाए। तो
तो ये तो एक हमारी प्रेयर थी। दूसरी ये प्रेयर थी कि जितना भी रिक्रूटमेंट प्रोसेस है, या जितना भी हम सर्विस जो विकलांग अधिवक्ता बनते हैं उसके बाद वो जुडिशियल ऑफिसर्स बनते हैं, तो उन विकलांग जनों को या उन विकलांग जुडिशियल ऑफिसर्स को या विकलांग अधिवक्ताओं को, स्पेशली विकलांग जुडिशियल ऑफिसर्स को, या चाहे वो विकलांग कैंडिडेट भी हो जो कि एक जुडिशियल एग्जाम के अंतर्गत बैठ रहा है फॉर द पोस्ट ऑफ जूनियर डिवीजन सिविल जज के लिए, तो उसको जो भी रीजनेबल अकोमोडेशन की जो नेसेसरी है वो उसको दी जाए। और इसके लिए हमने कोर्ट से ये कहा कि आप सारी स्टेट्स और हाई कोर्ट्स को डायरेक्ट करें कि एक वो कॉम्प्रिहेंसिव एक पॉलिसी बनाए एक टाइम फ्रेम के अंदर, जिसके अंतर्गत जो भी रीजनेबल अकोमोडेशन किसी भी अगर कैंडिडेट को चाहिए, विकलांग कैंडिडेट को चाहिए, वो उसको दी जाए, चाहे वो रिक्रूटमेंट के प्रोसेस के दौरान हो, चाहे उसकी सर्विस के दौरान। और एक हमारी प्रेयर थी कि जितनी भी बैकलॉग वैकेंसीज हैं, क्योंकि हम ये देखते हैं कि सुप्रीम कोर्ट का जो खुद का रोस्टर है 2023 का, सितंबर 2023 का, जो कि ये कहता है कि जो जूनियर या लोअर जुडिशरी जो है वहां पे जो विकलांग जुडिशियल ऑफिसर्स का जो रेशियो है दैट इज जस्ट 0.6। जबकि हम विकलांग अधिकार अधिनियम जो 2016 है, हम उसमें देखते हैं कि वहां पे जो रिजर्वेशन है वो 4% है जितने भी पब्लिक एम्प्लॉयमेंट्स हैं। बट यहाँ पे क्या हो रहा है कि यहाँ पे जो 4% है वो भी फुलफिल नहीं हो रहा है। और अगर आप ऊपर से ये एक रूल लगा देंगे 3 साल का, तो उनके लिए कितना मुश्किल हो जाएगा। तो उसी के को ध्यान रखते हुए हमने सुप्रीम कोर्ट से ये दरखास्त लगाई कि भाई जितनी भी बैकलॉग वैकेंसीज हैं किसी भी स्टेट्स में, उनको पहले आइडेंटिफाई कराया जाए, और उस आइडेंटिफिकेशन के बाद उनको नोटिफाई कराया जाए कि जो लेस रिप्रेजेंटेशन है पर्सन विद डिसेबिलिटी का इन द लोअर जुडिशरी, उस गैप को हम फुलफिल कर पाए। सो ये हमारी प्रेयर्स थी। राइट। एंड व्हाट अबाउट द रीसेंट डेवलपमेंट्स? इस केस में भी रिसेंटली क्या डेवलपमेंट हुई है? देखिए, जहां तक रीसेंट डेवलपमेंट की बात है तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की जो बेंच थी, जो पीठ थी, जिसको चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, मुख्य न्यायाधीश जो हमारे हैं, उनका ये सोचना और समझना था कि भाई जो विकलांग जनों के जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, हम उसको एक स्पेशल कंसिडर करके हम उनको रिलैक्सेशन प्राइमा फेसिली नहीं दे सकते। और हम किसी हॉलिस्टिक व्यू पे अभी नहीं आ रहे हैं। हॉलिस्टिक व्यू पे आने से पहले जितनी भी हाई कोर्ट्स हैं अक्रॉस इंडिया, उनके रजिस्ट्रार्स को डायरेक्ट किया है कि ये जो ऑर्डर है ये उनके चीफ जस्टिस ऑफ द हाई कोर्ट्स के सामने रखा जाए, और उनका सजेशंस और फीडबैक मांगा जाए इस 3 साल के रूल के ऊपर कि इसको कंटिन्यू करना है या क्या उनके सजेशंस हैं। और सिमिलरली इसके अलावा जो जितने भी नेशनल लॉ यूनिवर्सिटीज हैं या लॉ स्कूल्स जितने भी हैं अक्रॉस इंडिया, उनसे भी ये फीडबैक और सजेशंस मांगे गए हैं। और ये जो ऑर्डर की कॉपी है इसको जो रजिस्ट्रार्स हैं ऑनरेबल हाई कोर्ट्स के, ये अपनी टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन के अंदर इन जितनी भी लॉ स्कूल्स या लॉ यूनिवर्सिटीज आती हैं उनके टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन के अंदर उन तक पहुंचाएं और उनसे अपने सजेशंस और फीडबैक लें। तो ये एक रीसेंट डेवलपमेंट है जो कि 15 जनवरी 2025 को आया है। और जो केस की अगली डेट है वो 26 फरवरी 2026 है। आगे देखते हैं कि क्या इस चीज में डेवलपमेंट होती है। Right. And there's also this one confusion going on. Ki whether this PIL that you've filed, is it just for persons with disability या ये और भी segments of the society को cover करता है? हाँ, ये बहुत इम्पोर्टेंट एक टॉपिक है, हीटेड टॉपिक है कि बहुत लोगों को ये लग रहा है कि ये जो पीआईएल है वो पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज के लिए फाइल की गई थी। बिल्कुल सही बात है कि ये सिर्फ पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज की कैटेगरी के लिए फाइल की गई थी जब हमने फाइल किया था भूमिका ट्रस्ट ने। पर जो जजमेंट या जो डायरेक्शंस अभी रिसेंटली आए हैं
उसके अंतर्गत हम ये देख रहे हैं कि जो सुप्रीम कोर्ट का व्यू है उसमें यूनिफॉर्म एलिजिबिलिटी को कंसिडर करके सजेशंस और फीडबैक जो है वो सारी इन एंड ऑल अराउंड सारी कैटेगरीज को एक मान के फीडबैक और सजेशन लिया गया है, स्पेसिफिकली नहीं लिया गया है। ये सब लोगों को समझना बहुत जरूरी है क्योंकि एक बहुत बड़ा कंफ्यूजन है जिसके तहत लोग ये नहीं समझ रहे हैं कि ये जो रूलिंग है या जो रूल है, ये जो हटने वाला है, ये सबके लिए हटेगा। अगर हटेगा तो तो ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट है सबके लिए कि जो स्कोप है अब पिटिशन का, इस पीआईएल का, वो बढ़ गया है। पहले जो विकलांगजनों के अधिकारों के अंतर्गत था, बट अब ये सारे कैंडिडेट्स के लिए है। Right. And also, there is this one Google form that we have circulated and just posted in our description below, which has been circulated by the Bhumika Trust. तो उसका क्या impact आएगा अगर if law student, the recently enrolled advocates, if they fill that form, what do you think is going to be the impact on this case or the PIL? देखिए, जहां तक इम्पैक्ट की बात है इस गूगल फॉर्म से, वो वही इम्पैक्ट करेगा जहां पे बढ़ चढ़कर जो लॉ स्टूडेंट्स हैं या लॉ ग्रेजुएट्स हैं या रिसेंटली एनरोल्ड एडवोकेट्स हैं, वो आगे बढ़ के इसको भरेंगे और अपनी जो वॉइस है, जो यूनिटी की वॉइस, जिसके लिए लॉ लीगल फ्रेटर्निटी जाना जाता है यूनिटी के लिए, उसको रेस करेंगे। तो ये हमारे ऑर्गेनाइजेशन के लिए भी मदद करेगा जब हम अगली बार सुप्रीम कोर्ट के में जाएंगे और आर्ग्यू करेंगे इस मैटर को आगे। तो यही डेटा जो हमारे पास स्टैटिस्टिकल डेटा होगा जो गैदर करा जा रहा है इस गूगल फॉर्म के द्वारा, उसको हम सुप्रीम कोर्ट की बेंच के समस्त प्रस्तुत करेंगे और उनसे दरखास्त करेंगे कि ये देखिए, ये ग्राउंड लेवल का डेटा है जो हमने कलेक्ट किया है सबसे, और ये उनके व्यूज हैं। तो इसलिए जितने भी व्यूअर्स हैं जो यहाँ इस वीडियो को देख रहे हैं, उनसे यही दरखास्त है कि डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक्स को प्लीज भरिए, क्योंकि दो गूगल फॉर्म्स हम लोगों ने सर्कुलेट करे हैं। एक सिर्फ लॉ स्टूडेंट्स के लिए है, चाहे वो किसी भी ईयर में हो। एक है कि जो रिसेंटली लॉ ग्रेजुएट्स हुए हैं, भले ही वो एनरोल हुए हो नहीं हुए हो, उससे फर्क नहीं पड़ता, वो भर सकते हैं। और तीसरा वो कैटेगरी के लोग हैं उसी गूगल फॉर्म में ही कि जो कि रिसेंटली एनरोल्ड एडवोकेट्स हैं, जो कि हाल फिलहाल में अधिवक्ता बने हैं। तो सबसे दरख्वास्त है कि इसको आगे से अपनी तरफ से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं और इसको जरूर भरें। And before we go towards our closing remarks, I would just like to ask you to give one short message to our young lawyers and judicial aspirants who have suddenly found themselves on the very challenging threshold of their careers. देखिए, ये समझना भी बहुत जरूरी है हम सब लोगों के लिए कि जो 3 साल का रूल आया था उसके अंदर जितने भी लॉ ग्रेजुएट्स थे या जो लॉ स्टूडेंट्स हैं या जो रिसेंटली एनरोल्ड एडवोकेट्स हैं, वो बहुत डिसहार्टेंड एंड डीमोटिवेटेड फील कर रहे थे। और यही कहना चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का भी था कि उनके पास काफी फीडबैक्स गए हैं इस चीज को लेके कि जितने भी लॉ ग्रेजुएट्स या लॉ स्टूडेंट्स हैं, वो बहुत ही डिसहार्टेंड एंड डीमोटिवेटेड हैं आफ्टर दिस 3 इयर्स मैंडेटरी प्रैक्टिस रूल। तो मैसेज यही है कि देखिए, आप सब आगे बढ़िए, आगे आइए, एंड लेट्स बिकम अ वॉइस फॉर यूनिटी, एंड लेट्स शो आर यूनिटी विच आर लीगल फ्रेटर्निटी इज नोन फॉर। तो आगे बढ़ के आइए, आइए सब मिलके इस मुहिम को आगे ले चले और इस 3 साल के जो डिस्प्रपोर्शनेट इम्पैक्ट्स हो रहे हैं इस रूलिंग के, उन सबको हटवा पाए। That was certainly a progressive and fruitful conversation. Thank you so much, Jayant, for being for it with us today. Thank you so much, Sarah, for being such a patient listeners, for all the people who are watching us here. And thank you so much to the MAD Foundation and to you, Sarah, as well, for hosting this conversation. So, before we close,
I would just recommend the listeners to just go ahead with filling up that form, because the bigger impact could happen with that, and it could actually change the tides of the ocean. Because one belief that I hold is that a constitutional democracy, in a constitutional democracy, the question is not who is capable of becoming a judge. It's actually whether the system itself is capable enough to become just, accessible, and inclusive for all. So, thank you so much, our dear listeners, viewers, and I hope you share this video as much as you can so that we can have a bigger impact for this.